नई न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और इस वक्त आपको बता दें पहले चरण का मतदान जो है वो बंगाल और असम में हो रहा है। वोटिंग जारी है। बंगाल में वोटिंग के दौरान एक एक ऑडियो क्लिप जो है उसको लेकर बवाल मच गया है। चुनाव आयोग से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है इस ऑडियो को लेकर। इसी से बीजेपी नेताओं ने शिकायत की है। कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने आरोप लगाया है ममता के ऊपर बीजेपी ने कि वो धमकाने की, उनके नेताओं को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। ममता ने उनके नेताओं को धमकाने की कोशिश कर बीजेपी कह रही है। ममता ने बीजेपी नेता को फोन किया और यहां पर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये ऑडियो जो है वो रिलीज किया है बीजेपी ने और ये कथित ऑडियो, देखिए न्यूज नेशन इस ऑडियो को लेकर आपको नहीं सुनवा रहा है। इस ऑडियो को लेकर हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते। ये दावा जो है वो बीजेपी कर रही है कि कथित ऑडियो जो है ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी और उनके नेता के बीच हुई बातचीत जो है उसकी ये टेप रिकॉर्डिंग है। मैं पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है और 90% से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता से किया है। तो आज हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देने भी आए थे और साथ में ये भी सलाह देने आए थे कि 100% मतदान केंद्रों पर किस प्रकार लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेकंड फेज में हम कुछ सावधानियां बरतें। जैसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, यदि उनको लिस्टेड हैं थानों में, उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, पुराने समय से वो पोलिंग बूथ पे, चुनाव पे रिगिंग करने के आदतन अपराधी हैं, यदि उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद सेकंड फेज में इस प्रकार 10% की घटनाएं भी नहीं होगी। और जिस ऑडियो क्लिप की बात बीजेपी कर रही है उसमें क्या है ये हम आपको सुनवाते हैं। ये बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी ने कथित तौर पर ये उनका ऑडियो है। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি একটু বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে না। মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে। আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি, আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন, 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা মানুষকে অনেস্ট বলে মনে করি? যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে থাকবো। আমাদের বিবেক জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। মানুষের প্রতি অন্যায় হবে আমি কেন মানতে যাব? না, সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি দীর্ঘদিন। শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক,
যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। ঠিক কিন্তু আছে, আমরা সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইটা করতাম। বলিস, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মীকে হিসেবে আমাকে ফোন করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবে। তুই ভেবে দেখো। ঠিক আছে দিদি। ओके, थैंक यू, ভালো থেকো। चलिए, तो यहाँ पर आपने कथित ऑडियो सुना जिसको लेकर बीजेपी जो है शिकायत कर रही है और एक बार फिर से राजनीति जो है गर्मा गई है। लेकिन इस सब के बीच में किस तरह से पहले चरण का मतदान हो रहा है, आरोप लग रहे हैं, हिंसा हो रही है और वहां पर किस तरह से यहाँ देखिए टीएमसी पलटवार कर रही है, इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दे रही है। टीएमसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है इस कथित ऑडियो क्लिप को लेकर। वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी टीएमसी के खिलाफ। और यहाँ पर बीजेपी दावा कर रही है कि नंदीग्राम में उनके जो पार्टी के नेता हैं उनसे मदद मांगी, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होकर काम करने के लिए कहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं जो पहले चरण में किस तरह का वोटिंग परसेंटेज है इस पर अपडेट देंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे साथ विद्यानाथ झा इस वक्त जुड़ चुके हैं और विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र जी, आप किस पोलिंग स्टेशन पे किस एरिया में खड़े हैं, क्या कुछ अभी 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आपके पास आया है, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? देखिए पिनाज, हम लोग जिस तरह सुबह से देख रहे थे लंबी लंबी लाइनें थी। मैं अगर इस बूथ की तरफ दिखाऊं जहां ये अभी आपको कम लोग दिख रहे हैं, 1-2 लोग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें 863 है। अगर हम इसी से एक एवरेज निकालने की कोशिश करें तो 840-45 के करीब वोट है, जिसमें से 570 के करीब डल चुका है, यानी 70% को ये 3 बजे तक क्रॉस कर चुका है। अब लोग रुके हुए लोग आ रहे हैं और ये भी एवरेज लगभग 88-90 तक ये जाएगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी सुबह और उसके बाद अगर मैं कांथी के अलग अलग हिस्सों में गया, कांथी दक्षिण के गांव में गया, तो इस समय भी वहां लंबी लंबी लाइनें हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। वो लंबी लाइनें लगभग 1 घंटे तक, मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटे तक लोगों का नंबर आएगा जो बाद में लग रहे हैं। तो ये जो मतदान है हमेशा से ऊपर होता रहा, लेकिन इस बार लगता है कि मतदान जैसे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है कि दोनों तरफ से जिस तरह का हाई वोल्टेज चुनाव है, जिसमें आपने भी देखा, हम सब लोग जो न्यूज़ नेशन के तमाम यहाँ रिपोर्टर्स हैं उन सब ने देखा कि किस तरह से ये पूरा चुनाव इस बार हाई वोल्टेज चुनाव लग रहा है। और चूंकि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं तो बहुत बड़े स्टेक लगे हुए हैं और कोई भी आदमी, यहाँ तक कि 75 साल के बुजुर्ग हैं जिनको हाथों में लेके आ रहे हैं, 70 साल की महिलाएं हैं जिनको व्हील चेयर पर ला रहे हैं, लेकिन वो उनसे अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड बोलते हैं, वोट खराब नहीं करना है। चलिए, तो ये इस बात को वोट जाया नहीं करना, इस बात को हम बदलाव के लिए या अपनी मौजूदा सरकार को स्ट्रेंथन करने के लिए किस लिए वोट दे रहा है, इस पर लगातार सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। 2 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि मतदाता जो है वो घरों से बाहर निकाल रहा है और बड़ी तादाद में वोट दे रहा है। तो पिछली बार के वोटिंग परसेंटेज से इन टोटलिटी ये ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, लगातार अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इस सब के बीच में जो कथित ऑडियो टेप जो है जो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ईसी तक पहुंच गई है बीजेपी, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विद्या, यहां पर बीजेपी कह रही है कि डर गई है नंदीग्राम में जो मुकाबला है उससे ममता बनर्जी, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, डराकर, धमकाकर, मान-मुनव्वल कर, और वही इस ऑडियो टेप से जारी भी होता है। क्या स्थिति है नंदीग्राम में, अगर आपसे समझूं तो, क्योंकि आप एक लंबे वक्त से वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जो ऑडियो टेप है उसकी पुष्टि तो अभी हुई नहीं है, उसे कथित ऑडियो टेप के तौर पर ही हम देखेंगे। लेकिन देखिए, मान मनौवल या फिर जोर जबरदस्ती का दौर लगातार चलता रहा है। ये अब से नहीं चल रहा है, जब से सुगबुगाहट हुई है यहाँ पर विधानसभा चुनाव की, तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया था। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, दोनों पार्टियों की तरफ से नेताओं को अपने पाले में रखने या करने का जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। अब अगर ऑडियो टेप लीक हो गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मामले को लेकर पहुंच गए चुनाव आयोग, लेकिन अगर स्थानीय तौर पर देखें, जमीनी तौर पर देखें, तो यहां देखिए बड़ी संख्या में जो टीएमसी के नेता हैं, यानी टीएमसी का जो एक तरीके से काडर कहा जा सकता है, वो बीजेपी की तरफ जा चुका है, जिसकी वजह से टीएमसी में बौखलाहट और बौखलाहट को किसी भी तरीके से जाहिर करने की कोशिश और उसको ग्रैब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो जैसे टीएमसी के नेता प्रोपेगेंडा है और बीजेपी कह रही है कि बौखलाहट की वजह से सब कुछ जो है हथियार दीदी जो है इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में नंदीग्राम में क्या वाकई में ममता बनर्जी ने खुद अपनी दावेदारी वहां शुभेंदु अधिकारी के सामने रखकर
क्या अपने लिए आफत मोल ले ली है, अपने लिए एक मुश्किल खड़ी कर ली है क्योंकि नंदीग्राम में अधिकारी परिवार का एक अलग दबदबा है, या फिर जो उनकी सोच थी कि शुभेंदु को वो उसी एरिया तक कन्फाइन कर देंगी, अगर खुद वहां शुभेंदु के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, उनका जो ऑरा है वो और ज्यादा सीटों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, उसमें वो कामयाब होंगी। लगातार हम बैटल ऑफ बंगाल में आपको अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, पहले चरण में किस तरह का मतदान हो रहा है और साथ ही साथ जो बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर ममता बनर्जी पर जो आरोप लगाए हैं, कथित तौर पर उसे ममता का ऑडियो बताया है। विकास चंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास जी, आप एक लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, क्या नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी फंस गई हैं क्योंकि अधिकारी परिवार का एक अलग दबदबा है और इसीलिए जिस तरह से कथित ऑडियो में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं को धमकाकर, बरगलाकर, मानव कर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं? ये देखिए, अब जो राजनीतिक परिस्थिति नंदीग्राम में दिखाई दे रही है उसमें तो यही लगता है कि ममता बनर्जी तमतमाहट में जाकर कर नंदीग्राम से प्रत्याशी बन गई। देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ थे तो ममता बनर्जी के साथ वो टीएमसी के रणनीतिकार ही नहीं थे, उसके वास्तुकार रहे हैं, मुख्य ममता बनर्जी के दाहिने हाथ रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका पूर्वी मेदिनीपुर का है या पूरा नंदीग्राम से लेकर के पश्चिमी मेदिनीपुर तक चले जाइए, ये शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव का क्षेत्र है। यहाँ दबदबा है, शुभेंदु अधिकारी को बेताज बादशाह कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी वहां से प्रत्याशी हैं तो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं, टीएमसी सुप्रीमो भी हैं और खुद वहां से प्रत्याशी बन गई तो साम दाम दंड भेद तो लगेगा। यही वजह है कि जैसे ही ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वहां से प्रत्याशी होंगी, उसी वक्त से बीजेपी क्या कहें कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में शहमात का खेल शुरू हो गया था और बहुत चरम तक पहुंचा है वो। और अब जो ऑडियो क्लिप सामने है, हालांकि कितना सच है क्या है वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो भी अभी सामने है, जो कथित टेप सामने है, उसके मुताबिक अब बीजेपी उन पर हावी होना चाहती है। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए ममता बनर्जी किस तरीके से अपने हार को स्वीकार कर रही है कि उनके एक जिले के अध्यक्ष को अपनी पार्टी में बुला रही हैं, तो इन्हें जिले के अध्यक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये अब बीजेपी इसे एक हथियार के तौर पर निश्चित तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी को ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में एक हथियार तो मिल ही गया है, एक आरोप लगाने का उनको एक मजबूत बहाना मिल गया है, जिसके जरिए बड़े नेता है उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए खुद ममता बनर्जी फोन करके कहती हैं अगर ये वीडियो जो कथित ऑडियो है जो सही साबित होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये ममता की नर्वसनेस जो है उसको दिखाएगा और बीजेपी इसको पूरा अनकैश करने की कोशिश करेगी, न सिर्फ नंदीग्राम में बल्कि पूरे बंगाल चुनाव में भी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद कैसा वोटर टर्नआउट रहा, क्या मिजाज है, ग्राउंड जीरो से अपडेट के साथ न्यूज नेशन फिर हाजिर होगा एक बड़ी पेशकश लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।